Hello and Namaskar. We are live and hope you can connect to us. Am I audible? I'll just check for the. Are we live? Can somebody just give an wave or hi? Hello. So I think we are live now. Yes. We're just waiting for few people to join. Hello. Yes, so it has been a nice journey till now. Am I audible? Please, जो कोई જોતું હોય લાઈવ તો માત્ર કોમેન્ટ કરો ને સંભળાય છે. Am I audible? I think are we connected by now? Yes. So we have got few people in, and I hope I am audible. ના સંભળાય તો ચોક્કસથી વચ્ચેથી પ્લીઝ મેસેજ કરજો, જાણ કરજો. So first of all, thank you all of you. I would like to thank all to make us Tathya Clinic as your favorite health destination. છેલ્લા 10 વર્ષથી we are trying to keep you people healthy, maintain health through world's second largest system of medicine, or in other words I can tell the nature's best science till now. कुदरत ने जो भी हमें विज्ञान दिए हैं उनमें से सबसे एडवांस या सबसे कुदरत के नज़दीक वाला विज्ञान जो कह सकते हैं, that is homeopathy. We have also been helping you through counseling also, which has been an integral part of our clinic since day one. Now, with this 10 years completed, we just celebrated 10 years of Tathya last year, and we received a very fabulous response, and we are thankful again to all the patients who have been through all these years with us and help us reach wherever we are. On these 10 years, we have added few modalities also for you. And taking the holistic health को एक नए लेवल पर, नए पायदान पे लेकर जाते हुए आपके लिए किस तरीके से हम हेल्थ को नजदीक ला सकते हैं, हेल्थ को आपके हाथ में दे सकते हैं, वो सोचते हुए वी ब्रॉट 2 अदर सेक्शंस और मोडालिटीज वी कैन से, जिसे हम एनर्जी मेडिसिन कहेंगे. 2 ऐसी मोडालिटीज एनर्जी मेडिसिन की हम आपके लिए लाए हैं, एंड दो में से एक है जो हम आपके लिए करते हैं और दूसरा है जो आपको खुद आपके लिए करना है. फर्स्ट वन बीइंग द प्राणिक हीलिंग. Pranic healing is where the healer helps the patient or the person seeking health or seeking the help there in various complaints, be it physical, emotional or mental. Second, जहाँ पे हम बात करेंगे where you have to do it yourself, where you can moderate the energy within you, and that is yoga. So yoga has to be done by the person himself, and that is the power given to the yogi himself, the practitioner himself, to remain healthy, ताकि शायद आपको हमें यानी डॉक्टर को कम मिलना पड़े.
So what is yoga? Yoga we know in forms of exercise. India has took a wonderful step recently declaring and telling UN and making it the World Yoga Day 21st June this Sunday. We have some interesting and exciting news regarding that also, which we will be sharing in the later part of the talk. But World Yoga Day हमने जो 21st June को we have been celebrating the World Yoga Day also. So what is yoga? Exercises, doing some postures, doing some asanas, doing some various types of yoga, say aerial yoga, and you must have heard different schools of yoga and everything. But basically, if we try and understand, every incidence, every action we take has some impact on us. हर एक एक्शन का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है. It can be constructive, it can be otherwise. Depending upon that experiences, हम जो भी करते हैं, वो चाहे हमारी हॉबी हो, हमारा काम हो, हमारा मुंडेन टास्क हो, उसके अंत में हमें जो एक एक्सपीरियंस मिलता है, उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि आगे हम वो एक्शन करेंगे या नहीं करेंगे. जहाँ हमें अच्छा फीडबैक मिलता है, आफ्टर द एक्शन व्हेन वी फील गुड इमोशनली और फिजिकली, वी रिपीट दैट एक्शंस. सो सबकॉन्शियसली समवेयर इस प्रोसेस में वी आर टचिंग अवर ओन कोर और अवर ओन पार्ट. इस टचिंग द कोर वाले पार्ट को अगर हम कॉन्शियस करना चाहे तो, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके, अगर आप मानो फुटबॉल खेलते हैं और आप फुटबॉल खेल के आपको बहुत मजा आता है ना, यू फील फ्रेश एंड यू फील रिजुविनेटेड आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, एंड यू ट्राई एंड फाइंड अ प्लेस और इन ओकेजन वेयर यू कैन गो आउट एंड प्ले फुटबॉल विथ योर फ्रेंड्स. राइट, मुझे बहुत मजा आता है फुटबॉल खेलने से, मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ. समवेयर दैट इज यू आर कॉन्शियसली हार्नेसिंग योर एनर्जी. बट ये अभी तक सबकॉन्शियस है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ओनली वन एक्टिविटी. वो जो एक्सटेसी है, वो जो फ्रीडम है, वो जो हेल्थ है जो आपको खेलने के बाद मिलता है, वो फिजिकली सिर्फ हार्मोन्स की वजह से नहीं है. इट्स डीपर ड्यू टू योर एनर्जी फ्लो ऑल्सो. अब इस चीज को अगर आपके पास ऐसी कोई सिस्टम हो, अगर आपके पास ऐसा कोई मेथड हो जिससे आप ये कॉन्शियसली कर पाए, बिना फुटबॉल खेले, बिना आपकी एक्टिविटी किए, जब आप चाहे तो, दैट वुड बी मेकिंग दिस कॉम्प्लेक्स फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आवर ओन बॉडी बीइंग एबल टू रिसीव द एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स. दैट इज कॉल्ड योगा. योगा समवेयर makes us capable to receive the energy flow from the universe and keep ourselves in the best state of health, physically, emotionally, intellectually. But it takes a lot to practice. उसे सीखने में, उसे प्रैक्टिस करने में बहुत काम लगता है, बहुत ही गाइडेंस और बहुत ही एक आप तजज्ञ के हाथों अगर ट्रेन नहीं होते हैं तो यू कैन हर्ट योर सेल्फ ऑल्सो. ये ना हो और हमारे पेशेंट्स, जो कोई पेशेंट्स वांट टू ऑप्ट फॉर योगा, जिन्हें जल्दी ठीक होना है, जिन्हें जल्दी रिकवर होना है, जो रिकवर होने के बाद अपनी रिकवरी मेंटेन रखना चाह रहे हैं, जिन्हें हेल्थ मेंटेन रखना है, जिन्हें जो स्वस्थ है शायद उन्हें बीमार नहीं पड़ रहा, इन सब के लिए वी नीड एन योग एक्सपर्ट हु कैन हेल्प अस, हु कैन गाइड थ्रू ऑल दिस. And here I will be welcoming our yoga expert, Rachna Shah, and she has done her Ayur Yoga. Rachna Bell, she has done her Ayur Yoga and completed her Ayur Yoga degree, and she's been training lots and lots many people. बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है. ऑनलाइन योगा क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन योगा क्लासेस ले रहे हैं, और वो कंडीशन बेस्ड योगा में मास्टर है. शी स्पेशलाइजेस इन कंडीशन बेस्ड योगा. हर एक प्रकार के पेशेंट्स के साथ वो डील करते हैं. सो वेलकम एंड नमस्कार रचना जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपसे मिलके काफी खुशी हुई. पहले भी मैं आपसे मिली हुई हूँ. Yes, those who have joined our live session, I think by now they know that we had done a wonderful live session and we have got so many good responses also after that. बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं. मैं आपसे पहले भी मिली हुई हूँ. मेरा नाम रचना शाह है. मैंने कई जगह से योगा की ट्रेनिंग ली हुई है. अभी रिसेंटली गुजरात यूनिवर्सिटी से मेरा पीजी डिप्लोमा चल रहा है. काफ़ी तरह की ट्रेनिंग मैं ले चुकी हूँ. नेचुरोपैथी की, न्यूट्रिशन की, अलग अलग थेरापीज की, ऑल्टरनेटिव थेरापीज की. और जैसे कि आनंद सर ने बताया,
मैं डिजीज बेस्ड योगा, जैसे कि कोई स्पेसिफिक योगा के लिए, कोई स्पेसिफिक रोग के लिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल। और जैसे कि आनंद सर ने बताया, वैसे करीबन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से आज तक मेरे ऑनलाइन योगा क्लासेस चल रहे हैं और सक्सेसफुली रन हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। आपने मेरे पेज पे शायद देखा होगा, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया हुआ है। आप वो भी मेरे पेज पे से देख के फॉलो करके देख सकते हो कि मेरे काम को लोगों ने काफ़ी सराहा है। Right. So the point here is why disease based yoga? You know, योगा डिजीज बेस्ड योगा और योगा में शायद यही अंतर है, जो आप ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं एक मेडिकल स्टोर से बीमार पड़ने पर और एक डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेते हैं। तो इन दोनों में जितना फर्क है उतना ही फर्क है डूइंग एंड जनरल योगा एंड डूइंग एंड डिजीज बेस्ड योगा। सो वी विल बी शेयरिंग फ्यू एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द डिजीज बेस्ड योगा एंड फ्यू वेरी कॉमन कंडीशंस आई सपोज के जहां शायद जनरल योगा करने में और डिजीज बेस्ड योगा करने में क्या अंतर आता है, हाउ डज इट मैटर और हाउ डज इट मेक डिफरेंस टू द पेशेंट। तो राइट नाउ अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करें, इट दे आर ऑन राइज। हमारा खान पान डिस्टर्ब है, वी आर लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ ऑल्सो। तो इन सब के चलते कुछ कॉमन कंडीशंस की बात करें, जैसे मान लीजिए डायबिटीज हुआ, जहाँ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओएस पीसीओडी है, माइग्रेन्स है जो स्ट्रेस से बहुत ही ट्रिगर होते हैं, जॉइंट पेन्स इन यंग पीपल एंड दे इवन कम एंड टेल के डॉक्टर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम करते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, फिर भी जॉइंट पेन्स होते हैं। तो हाउ कैन वी हेल्प, एक एक अगर हम बात करें। हाँ, जैसे आपने बोला डिसीज बेस्ड योगा, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल का सर ने बताया, वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल अभी बहुत ज़्यादा फास्ट है, खाना पीना सब कुछ हमारा ये सब बाहर का खाना, we don't moderate, we don't go for healthy diet. हेल्दी डाइट अभी नहीं है। नो डाउट लॉकडाउन में काफी फर्क पड़ा है, लोगों ने घर का खाना they had no choice, they had no choice, right? ये एक टाइम बिंग है, जैसे शुरू होगा वापिस लोगों का बाहर का खाना पीना घूमना शुरू हो जाएगा। तो इन सब में योगा काफी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि योगासन आपने पहले बोला कि आसन करो पर किसी तज्ञ के, मतलब किसी एक्सपर्ट के सामने करो, तो आपको पता चलता है कि कौन सी बॉडी को कैसे मूव करना है और कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कब इनहेल करना है, तो कौन से इंटरनल ऑर्गन्स पे आपको इफेक्ट हो रहा है, कौन से सेल्स तक ऑक्सीजन जा रहा है और कहाँ से नेगेटिविटी बाहर निकल के आपके शरीर में से पूरे टॉक्सिन्स को लेके बाहर निकलती है। आपने ये भी बोला कि कॉस्मिक एनर्जी काफी चैनलाइज करना है, वी हैव टू बी द रिसीवर टू तो उससे हमें इसको रिसीव करना है। तो आप एक प्रॉपर पोजीशन में जाएंगे, जैसे मेरे जैसे कोई एक्सपर्ट्स के अंडर में, तो आप अच्छे से इनहेलेशन के साथ जाएंगे, तो वो एक योगा का होगा जहाँ पे माइंड बॉडी एंड सोल का एक कनेक्शन यूनियन होगा। अदरवाइज ये खाली जिम की एक्सरसाइज Exactly. During our last live, this was what I was trying to make a point here कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जिम एक्सरसाइज और योगा एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है। When you are consciously watching your breath during exercise, it becomes yoga. Yeah. When you are seeing the inhalation and exhalation during the exercise, it becomes yoga. उसके बिना जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, it's nothing but you are training your muscles, but not the union of body, mind and soul. क्योंकि योगा itself means an union. योगा जो शब्द है उसका मतलब कहीं ना कहीं यूनियन होता है, जुड़ना होता है। वेरी ट्रू। तो कैसे हम अगर, और ये तीनों जब तक अलाइनमेंट में नहीं होंगे, बॉडी माइंड एंड सोल, तब तक दे वुड बी क्रिएटिंग डिजीज ऑल्सो। सो हाउ डू वी डू दैट so that we can keep this all three in one alignment. Yeah. So coming back to this condition based. Yeah. अभी मैं आपको बता सकती हूँ, डायबिटीज के बेस्ड योगा होता है आजकल, ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखा गया है, जिसको भी देखो डायबिटीज होता है। So डायबिटीज को भी हम योगा से हेल्प कर सकते हैं। पक्का। डायबिटीज मेरे कई पेशेंट ऐसे मैंने ट्रीट किए हैं जो डायबिटीज वाले पेशेंट थे। ब्लड प्रेशर तो मेरे घर में ही था, काफी कुछ चीजें भगवान ने मुझे दी थी जिसको मैंने अपने आप हील किया है। कई पेशेंट ऐसे थे मेरे पीसीओडी पीसीओएस के,
ओबेसिटी के पेशेंट हैं जिनको भी मैंने रिकवर किया है। अभी रिसेंटली मैंने जो जूम योगा में काफी टाइम से 2.5 महीने 3 महीने से करवा रही हूँ, 3 महीने कंप्लीट होने को आए, उसमें मेरे कई पेशेंट ऐसे थे, कई स्टूडेंट ऐसे थे, दे ऑल आर फ्री ऑनलाइन योगा। अदरवाइज इवन दो वहां से भी मुझे ये फीडबैक आया कि मैम मेरे बैक में पेन था, मेरे नी में पेन है, वो चला गया। क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास वो मैंने उनको इतनी फ्रीडम दी थी। 30, 35, 40 जन की क्लास भी थी मेरी, पर वो लोग मुझे बताते थे मैम मुझे आज ये हो रहा है, तो मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। वो लोग बोलते मैम आज हमें कमर में दर्द है, बैक पेन का योगा बताओ ना। सो डिपेंड्स अपॉन दैट। सो अब जैसे बैक पेन या कोई मसल पेन हो रहा है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज या योगा करना, और एक डायबिटीज जैसी कंडीशन जहाँ पेशेंट अमूमन आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हाँ, तो वहाँ क्या कर सकते हैं? उसको हम उसके लिए स्पेशल आसन है, उसके लिए स्पेशल आसन है, वो आसन में ले जाके हम उनको एक्सलेशन इनहेलेशन करवाते हैं, उनको वहाँ पे ले जाके माइंड को वहाँ ले जाके फोकस करवा के ऑटो सजेशंस देते हैं, उनको मेडिटेशन देते हैं, काफ़ी हद तक उनको डाइट की टिप भी देते हैं, और उनको बताते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में इतना चेंज करो और साथ में योगा करते जाओ। तो उनकी काफ़ी हद तक मैंने देखा है उनको मेडिसिन लेने की जरूरत भी कम, शुरुआत में हम मेडिसिन के साथ करवाते हैं, फिर धीरे धीरे मेडिसिन कम हो जाती है, और कई लोगों की मेडिसिन चली गई है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 4-5 सालों से काफी हद तक। So somewhere the physiological need for the organ to manage the levels of insulin and sugar both with some external help, जैसे इंसुलिन ले लिया या मेटफॉर्मिन की गोली ले ली, वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस वुड अलाइन आपके अंतःस्राव, आपके हार्मोन्स को सीक्रेट करवाएगा, जिसके कारण आपका इंसुलिन का इंटेक और आपका शुगर का यूटिलाइजेशन एकदम प्रॉपर वे में होगा। ऑटो सजेशंस वाली बात भी क्योंकि योगा है, वो आपकी हर एक ग्लैंड पे वर्क करता है। आप हर एक ग्लैंड और चक्र पे फोकस करेंगे, जो भी आसन में जाएंगे वहाँ जो ग्लैंड आपकी एक्टिव हो रही है, जो चक्र एक्टिव हो रहे हैं, उसको आप फोकस करवा के, और उसके लिए जरूरी ग्लैंड को आप फोकस करवा के करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स पे फोकस करवा के, तो काफी हद तक रिजल्ट मिलते हैं। माइग्रेन के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो 100% रिजल्ट मैंने दिए हुए हैं। So when is the last time we were conscious about our pancreas or our intestines or our heart? I don't know. You know, तो ये फोकस करने की जो बात है, that is very important. Somewhere you are being connected. See, disease क्या होता है, बीमारी. Classically, if we try and understand the word dis-ease itself, when somebody is not at ease, जब तक हम अपने ease में रहते हैं, till when we are healthy, तो we never see ourselves. कभी सोचा है कि हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, कभी हमने ये सोचा है कि लंग्स कितनी हवा रोज क्लीन करते हैं, कभी हमने ये सोचा है कि आंतों में फूड कैसे प्रोसेस हो रहा है, नेवर। जब बीमार होते हैं तब दैट इंटेस्टाइन गिव्स यू एन सिग्नल, चलो भैया पैखाने दौड़ो, एंड देन यू रिमेम्बर कि अच्छा इंटेस्टाइन्स भी है। जब कमर दर्द होता है तब पता लगता है कि ओके लोअर बैक में पेन हो रहा है, हमारी लंबर वर्टिब्रा कहीं प्रेस हो रही है और उसको कंप्रेशन की वजह से पेन हो रहा है। अब मैं जाऊंगा योग एक्सपर्ट के पास के भैया प्लीज इसको हेल्प करके दो ना। सो दिस इज द डिफरेंस समवेयर। Being conscious also makes watching or focus upon the organs and giving auto suggestions. पर ऑटो सजेशन देने के लिए भी जैसे कई जगह से हम पढ़े हुए एनाटॉमी, तो योगा टीचर होने के साथ एनाटॉमी पढ़े हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपनी शरीर की एनाटॉमी पता नहीं होती, आप पेशेंट को कैसे रिलाई कर सकते हो। मैं पास में एनाटॉमी टीचर भी रह चुकी हूँ, सो आई नो वेरी वेल कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। तो हर एक पेशेंट का जो डिसीज है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है और उस ऑर्गन पे कैसे काम करना चाहिए, कौन से ऑर्गन को किस तरह से ऑटो सजेशंस देने चाहिए, तो वो डिसीज कैसे हील होता है, वो एक एक्सपर्ट योगा टीचर को जानना बहुत जरूरी होता है, तो ही आप डिसीज बेस्ड योगा पे ओवरकम कर सकते हैं। This is very true because see right now the trend yoga is in trend. Yeah, this is not fair कि आप YouTube पे देखो, देख के कर लिया, खत्म हो गया, नहीं। I'm coming to that. I think yoga is in trend and according to one statistics, 55 million people just in US, सिर्फ US में 55 million people were to practice yoga by 2020. अब हो क्या रहा है, जब योगा वेस्ट में जाके वापस आया तब ज्यादा फेमस हो। हाँ, तो हमारा एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ गया। वो तो हमारा ही नेचर ही है, वहाँ से आएगा तो हम अपना ही लेंगे। So, वो एक्सेप्टेंस बढ़ने के कारण
we have seen this insane number of yoga classes, or see, all are doing good, but insane number increasing day by day and night. दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं. जिस we see an योग क्लास every second lane. अब वहाँ क्या होगा कि मैंने 15 दिन योगा सीखा. मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 15 दिन योगा सीखा. अब 16वें दिन से मैं शुरू हो जाऊंगा एज अ योग टीचर और योग एक्सपर्ट. आई थिंक दिस इज समवेयर वेरी हार्मफुल. ये कैसा होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे पढ़ते हैं, लोगों के मसल्स खींच आते हैं. वेरी ट्रू, कि 30 दिन में डॉक्टर बने, तो भैया हम 5.5 साल हमने क्या किया. तो उसी तरीके से एक वेल ट्रेन योगा टीचर के पास जाना कहीं बहुत जरूरी है. मैंने काफी जगह से योगा सीखा है, और अभी बेसिकली मैं योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में टीचर भी हूँ. मेरे अंडर एवरी ईयर कम से कम 70 to 80 योगा टीचर्स मैं ट्रेन करती हूँ, जहाँ से मैं करवाती हूँ. नो डाउट मैं वहाँ पे ऑनररी सर्विस ही देती हूँ, पर मुझे ये मौका मिलता है तो पर मैं वो करती हूँ. उसके बावजूद मैंने कई जगह से, गुजरात यूनिवर्सिटी में से, बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में से, लकुलिश यूनिवर्सिटी में से, सबसे योगा का कोर्स किया. साथ में एनाटॉमी का भी कोर्स किया. वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने शरीर को नहीं समझोगे, आप दूसरे के शरीर को कैसे समझोगे. वेरी वेरी. So this has to be a very scientific process, I suppose. It has to be a very scientific process, जहाँ एक व्यक्ति अंदर देख सकता है. They know where what thing influences the other parts of the organs also. इसीलिए कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की जरूरत है. और मैं इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के साथ भी जुड़ी हुई हूँ 4-5 साल से. मैं रेगुलरली वो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के जो भी कुछ CMEs होती है, जहाँ सारे मैक्सिमम गायनेक डॉक्टर्स होते हैं, उनके भी मैं CME रेगुलरली अटेंड करती हूँ. तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता है. तो उसके लिए मैं PCOD, PCOS या मेनोपॉजल पीरियड या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, लेडीज के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड करके ही मैं योगा करवाती हूँ. मैं इतने साल से योगा करवाती हूँ, पर मैं मैक्सिमम योगा डिसीज बेस ही करवाती हूँ. तो मुझे उसके रिजल्ट मिलते हैं, तो वो मुझे अपने लिए एक चैलेंज लगता है, और मुझे लगता है यस, मुझे इनको ठीक करना ही है और मुझे इनको अच्छा करना है. तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती है इन सब चीजों से. So somewhere she also belongs to a large medical family background. And she has been working with different aspects of the society like menopause, dysmenorrhea, somewhere mental health also. But we'll not be touching that aspect क्योंकि अभी सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं. So family counseling also. Family counseling also. But right now we are not talking about it because दो दिन से सब उसके पीछे लग गए. So let us leave that part for the experts right now. दूसरी एक ऐसी ही कंडीशन कहीं वी कैन से स्ट्रेस ट्रिगर होती है, दैट इज नोन एज माइग्रेन, जहाँ नर्व्स इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि व्यक्ति लाइट नहीं देख सकता है, व्यक्ति साउंड टॉलरेट नहीं कर पाता है. वैसी चीजों में एंड आई टेल यू कि माइग्रेन केसेस आर इंक्रीजिंग. माइग्रेन केसेस आर देयर एक्सट्रीम माइग्रेन, एंड दो दे आर हेल्प लवली इन विद मेडिकेशंस, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहा है, उनके पास मेडिसिन या तो नहीं है. What kind of asanas or what kind of exercises can help them also? आपने एकदम सही मुद्दा लिया, क्योंकि माइग्रेन है वो काफी लोगों का आजकल कॉमन है. आपने बोला तो, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ मोबाइल भी आप बोल सकते हो, हर तरह का स्ट्रेस तो है ही, पर एक्सेसिव ऑफ मोबाइल, रात को देर तक आप स्क्रीन को देखोगे तो फिर आपकी आंख थक जाएगी, तो आपका दिमाग भी थक जाएगा. तो उसके लिए हम काफी कुछ आसन भी करवाते हैं, जो आसन उसी टाइम उनको करना चाहिए. मैं थोड़ा बहुत सुजोग और वो सब थेरापी भी पढ़ी हुई हूँ. सुजोग थेरापी, नेचुरोपैथी, मर्म थेरापी, कलर थेरापी, पंचकर्म, शिरोधारा. तो वो सब के अलावा कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं माइग्रेन के लिए उनको बताती हूँ, वो उनको फॉलो करते हैं. प्राणायाम इज द बेस्ट फॉर द माइग्रेन. मेडिटेशन, मैंने जैसे आपको बोला, ऑटो सजेशंस शवासन में जाके, विच इज द बेस्ट, वो मैं उनको देती हूँ. तो वो जब मैं उनको करवाती हूँ तो वो काफ़ी अच्छी तरह से वो उनके ऊपर ओवरकम हो सकते हैं. और मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो कंटिन्यूसली दवाइयाँ ले रहे थे, पर मैं 6 महीने से उनको अगर करवा रही हूँ तो उनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और दे आर वेटिंग फॉर मी. रचना मैम आप कब आ रहे हो, आप मत छुट्टी करो, एक भी दिन आप सैटरडे संडे भी आओ, तो मुझे अच्छा लगता है. मतलब उनको रेगुलरली हम करवाएंगे तो 100% उससे ओवरकम हम हो जाएंगे. Right. So there can be exercises which can be moderated like this also. So the point is कि condition based योगा में ट्रेन होने का सबसे अच्छा पॉइंट यही है शायद कहीं पे, कि you are being examined thoroughly by a practitioner
who is an expert, who knows the in and outs of your physical body and your energy body both. So this would help you to remain healthy for a long term and health in your hands. Now I'll also like to share about this online yoga. See, looking at this COVID conditions in present, what we do is we are not allowing, or for your health, for your sake of health, we are not allowing lot many people here. No. And we are looking forward towards online yoga, where we can just book an appointment and the teacher would connect to you online for the yoga. उसके पहले की क्या process है, we'll get through that also. But how is your experience with this online yoga? Oh, awesome. अभी मैंने आपको बोला ना कि मैंने करीबन 18 मार्च से, क्योंकि I am a teacher at आदर्श अहमदाबाद, तो वहाँ का क्लास ऑलरेडी मेरा चालू था, कंप्लीशन हो गया था, पर दे रिक्वेस्ट मी कि मैम चलो हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करो हमारा, तो मैंने 18 मार्च से शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जैसे ये लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी लोग जुड़ते गए, करीबन 40 to 45 पीपल एवरी डे मैंने हैंडल किया 2.5 महीने उनको, तो फ्री ऑनलाइन मैंने उस टाइम क्लास करा, पर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया, क्योंकि रोज 40-50 लोगों को हैंडल करना, धीरे धीरे कभी 30 हुए, कभी 25, कभी 40, कभी 45, पर 2.5 महीने कंटिन्यूस उनको मैंने हैंडल किया। उसके बाद भी मेरे कंटिन्यूस क्लासेस चल रहे हैं, मेरे पर्सनल क्लासेस भी 1-on-1 भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो मुझे कोई जरा भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने उस तरह का नेट लिया हुआ था कि मेरा कभी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, और एक बंदे को पर्सनली मैं वो कर रही थी। How is that? Because कई बार पेशेंट्स का ये भी फीडबैक आता है कि डॉक्टर साहब हम जो आसन कर रहे हैं तो उसमें हमारा बॉडी पोजीशन ठीक है या नहीं, वो ऑनलाइन पे जज कर पाएंगे? यस, पक्का, क्योंकि ऑनलाइन पे मैं कंटिन्यूस उन पे वॉच रखती हूँ, और मेरा कंटिन्यूस सजेशन होता है कि लेफ्ट लेग अप करो, सीधा रखो, 90 डिग्री का एंगल करो, सी 45 डिग्री का एंगल करो, आपका हाथ ठीक नहीं है, आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, कंटिन्यूस सजेशंस आता है और दे विल फॉलो, और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। प्राणायाम में मैं उनको काफी नजदीक ले लेती हूँ, जस्ट उनका इतना पार्ट मुझे दिखता है तो आई कैन सी उनका एक एक ब्रीथ को मैं देखती हूँ, और कंटिन्यूस मेरा उनके ऊपर चलता है, तो उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन 100% श्योर हो वो ठीक होती है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन किया है तो ऑनलाइन में नहीं होता, सिर्फ फर्क यह है कि ऑफलाइन में हम उनको टच करते हैं, उसमें टच नहीं करना, पर मेथड तो सेम ही रहता है। So you can hold their hand and moderate in the offline, whereas in the online you can just guide them thoroughly. मैं करके दिखाती हूँ उनको, जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो कंटिन्यूसली मैं उनके साथ करती हूँ, उनको दिखाती हूँ कि दिस इज योर रॉन्ग, आपने ऐसे रखा है, आप ऐसे रखो तो ये ठीक होगा। मैं अपने शरीर के साथ उनको दिखाती हूँ कि आपने ये गलत किया है, अब आप इतना सही करो, तो वो तुरंत चेंज कर देते हैं, एंड देन वी गॉट द रिजल्ट। So कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, and I've been knowing her since long, she is an tough taskmaster, वो जब तक आप ठीक नहीं करेंगे she is not going to leave you, I bet for sure. Beyond that what would happen is कि कहीं ना कहीं जो जनरल बैचेस है तो 40-50 तक की जनरल बैचेस have been moderated very well, and we are focusing more upon one-to-one or at least group yoga of 3-4 people, जैसे PCOS के 3 लोग साथ में है तो वो लोग एक ग्रुप योगा में 3 का ग्रुप, and which they would be having on their individual screens, I suppose. So that's very easy to manage. वो डायबिटीज हुआ, वो PCOD हुआ, weight loss कहीं ना कहीं, because most of the people are struggling with weight loss in spite of के खाना कम खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। डॉक्टर एक बात मैं आपको यहाँ बताना पक्का जरूर समझूंगी आनंद सर की योगा को लोगों ने वेट लॉस के साथ जोड़ दिया, योगा मतलब वेट लॉस करना, ये बहुत गलत है। नो डाउट योगा से वेट लॉस नहीं होता है, होगा हाँ, बहुत अच्छा होता है, पर ओनली वेट लॉस नहीं होता। आनंद सर वेट लॉस तो होता है, पर वेट लॉस के साथ जब आप नॉर्मली वेट लॉस करोगे ना तो आपकी स्किन डल जाएगी, मतलब ये नीचे स्ट्रेच मार्क्स और आपका डल हो जाएगा बॉडी, आपका बॉडी लैंग्वेज। पर अगर योगा करते हुए वेट लॉस होगा, जो वेट लॉस के भी आसन है, प्राणायाम है, तो उससे अगर जो वेट लॉस होगा तो आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे कोई फर्क नहीं होगा। इवन तो आपका फेस ज्यादा ग्लो करेगा बिकॉज बॉडी टोन होगा, क्योंकि मैं पहले भी बोला कि योगा
आपको तीनों तरह से करता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आपकी बॉडी पे तो इफेक्ट होगा, और योगा के साथ करने के साथ आपका माइंड अगर स्टेडी होगा, अगर माइंड अगर कूल होगा, हैप्पी होगा, तो आपकी सोल भी कूल होगी, तो उसका आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे। So the natural glow what we are talking. यस, तभी मुझे कई लोग बोलते हैं कि रचना तू 50 की लगती नहीं है, पर 50 की मैं हूँ, 50 मेरा चल रहा है, पर दिस इज द वेरी यूजफुल। This was again a question asked to me by many people after the last live session. How old is your yoga teacher? That's why I mentioned today. That's why I mentioned today. And she's 50. So if at 50 you want to be her like her, then you should surely learn yoga by yourself. Okay. So hair के लिए, skin के लिए अभी maximum problems है, सबके लिए योगा best है। So I think listening to this, people would stop taking medications from me and they'll just practice yoga. No. कई लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आप अगर कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयाँ एक्सपर्ट से चालू रख के आप साथ में योगा करोगे, तो आपकी दवाइयों के साथ योगा का फर्क होता जाएगा, धीरे धीरे दवाइयाँ छूटती जाएगी। ये नहीं है कि आज योगा शुरू किया और दवाइयाँ छोड़ दो, नो, दैट इज हार्मफुल। योगा के लिए स्टार्ट करोगे तो दवाइयाँ शुरू में आपको चालू रखनी है, धीरे धीरे दवाइयों का कोर्स कम हो जाएगा और योगा आपको बेनिफिट देगा, वो आपको पता चलेगा। Still, I'll just put it into a more palatable way for you. See, when you are taking any conventional medicines, we are dependent usually upon the physiological doses of medicines. Now, what does this physiological doses do? They help your organs, ये आपके अंगों या अवयवों को ठीक से फंक्शन करने के लिए थोड़ा सपोर्ट करते हैं। वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म उसका डोज बढ़ता जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर की गोली पहले 2.5 mg हुई, 5 mg हुई, फिर 10 mg हुई, करने के लिए योगा बेनिफिशियल। उसके then what we do is we shift to the natural medications like homeopathy, ayurveda, which stimulates the body's own system, जहाँ वो हार्मोन्स को भी मॉड्यूलेट करेंगे और न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून एक्सिस के ऊपर काम करके it will start maintaining the levels on itself. Now if we want to fasten this process also, योगा अगर अब यहाँ पर तो सिर्फ डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, पेशेंट तो सिर्फ दवाई ले रहा है, पेशेंट इज समवेयर पैसिव। नाउ इफ पेशेंट आल्सो वांट्स टू बिकम एक्टिव, क्योंकि आए दिन पेशेंट हमको पूछते हैं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो जल्दी ठीक होने के लिए क्या करना है, पेशेंट को एक और गोली ही चाहिए। पेशेंट ये कहता है सर और दवाई दे दीजिए, आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दीजिए लेकिन मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो वहां आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं लेनी है, मेडिसिन जो डिजाइंड है उस तरीके से ही जाएगी। वो आप यहाँ पर योगा ऐड कर सकते हैं, यू ऐड दी एक्सरसाइजेस एंड दिस सिंपल एक्सरसाइजेस आई टेल यू। और कंडीशन बेस्ड योगा में तो शायद 1, 2 या 3 सिटिंग में आपको घर पे क्या करना है वो सिखा देंगे, फिर वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। Whenever you are into doubt, you can get back to our yoga teacher and you can start practicing in a right way. But 1, 2 or 3 sessions are enough for condition-based yoga to make you understand what you need to do exactly. और फिर सर जो हेल्दी है, जिनको हेल्दी रहना है, वो कंटिन्यूअस योगा कंटिन्यू कर सकते हैं। True. So for the healthy people, for the younger generations, even for kids, they can continue with a general yoga course के जो which will help them maintain health, which will help them maintain acute health also, कि seasonal flu है, seasonal बीमारी है, बुखार है, वो ना आए, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर से एक बैलेंस में है, इम्यून सिस्टम आपकी डेवलप होती है। वेरी ट्रू। सो दैट स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम इज द की, ताकि हमें एक गोली से इम्यून सिस्टम बढ़ानी ना पड़े। तो उनके लिए दिस इज द बेस्ट आंसर। तो मॉर्निंग बैचेस वी वुड बी मोस्टली हैविंग एज जनरल बैचेस 5 days a week mostly, and the condition based batches would be moderated according to your requirement. Now here also I'd like to add is that before you are recommended for the yoga, suppose let us take a scenario, a person with diabetes wants to get yoga exercises for himself. So you can choose only for yoga. आप यहाँ पर आके क्लिनिक कांटेक्ट करके होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे और साथ में योगा ऑप्ट करेंगे, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो। Say you are already on some kind of medication and you just want to go for yoga, you are free to do that. How I will be helping you here moderating is, I'll do an analysis of the person. जैसे हमारा केस टेकिंग होता है वैसे ही मैं आपसे पूरी बात करके समझूंगा कि उनकी बीमारी कब से है, कैसे शुरू हुई, कोई इमोशनल ट्रॉमा है जहाँ से बीमारी शुरू हुई, and I will be sharing that all details of that patient. The case study in a way scientific case study जो पूरा बनेगा उस व्यक्ति का मैं शेयर करूंगा हमारे योग एक्सपर्ट के साथ।
On basis of that, Rachna ji will design the Yeah. proper yoga course with that asanas and something Pranayam. needed for that emotional trauma also. Yes, yes. So asanas, pranayam, meditation, everything will be designed accordingly. Yes. Plus, after say you took 3 sessions या 2 sessions and now she has told कि अब आप घर पे अपने तरीके से practice I mean, कर I can सकते हैं. suggest some diet also. Diet also, Ayurveda yoga. Yeah, Ayurveda yoga. Plus, I have done food and nutrition, Sure. naturopathy. तो काफी कुछ उनको वो सब भी मैं So suggest these कर are all सकती freebies for you. You know, these are all freebies for you with yoga. But after that also, every month and every 3 months, every quarter we would be having an evaluation also, evaluation time. कि हमको पता लगेगा how much have you evolved with this. Yeah. कि अगर आपने इतना योगा खुद Yeah. practice किया है तो तो क्या आपकी फर्क health लगा में है? very Yes. true. So this is somewhere the benefit of And being sir, with a doctor and a yoga वो करने expert. की जरूरत नहीं पड़ती है. वो पेशेंट के फीडबैक ऑलवेज फीडबैक सामने से आ ही आ ही जाते जाते हैं. हैं. Patience 2-3 test. सिटिंग में ही आ जाता है कि आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर. मुझे ये था, अब ठीक हो गया. मैंने बोला ना, जैसे Right. फेसबुक पे काफी फीडबैक मुझे मिले हैं जो मैंने Right. ऑनलाइन योगा फ्री करवाया 2.5 महीने. तो उसमें पेशेंट ने लिखा हुआ है कि मुझे बैक पेन था, मुझे नी पेन था, मेरा चला गया. तो मतलब ये सब फीडबैक उनके हमें क्लास के ड्यूरिंग भी मिलता है. जैसे कल मैंने क्लास ली हो, वो पेशेंट बोलता है मुझे मैम आज मुझे हेडेक है थोड़ा, आज उसके लिए कुछ करवाओ. वो कंप्लीट करने के बाद क्लास सेशन खत्म होते ही वो बोलते हैं कि आई एम फीलिंग बेटर. Better. या दूसरे दिन बैड दिन, अभी एक मेरी पेशेंट थी हम्म. जिनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था बैक पेन का, और मेरे पास फोन आया. मैंने बोला कि तू कम से कम बेड पे जितना करे उतना कर. उतना करने के बाद आज 15 दिन हुए हैं उनको मेरे साथ शुरू किए हुए. वो खड़ी होके सारे आसन कर रही है, और इवन बैक पे, सुपाइन पे और She can lie स्टमक down. पे, या सब दोनों पोजीशन पे. एंड शी इज टू मच हैप्पी, क्योंकि धीरे धीरे उनमें बदलाव आता है. तो वो सामने से बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है. True. तो ये आपको हम फीडबैक लेंगे ना, उससे Right. पहले उनके उनका feedback देंगे. Yes. But so there would be a pre-analysis, there would be a post-evaluation, Yes. and there would be a holistic training where all the modalities can be applied together. So I think this is the best way to get healthy, taking health in your own hands, putting some active efforts for your health. आप खुद प्रयत्न करें ताकि आप स्वस्थ रहे, आप एक्सरसाइज कर पाए, and the most evolved form of exercise where you will be connecting to the nature, where you will be somewhere getting the energy directly from the cosmos itself, and you are channelizing the healthy energy for yourself from the cosmos directly, avoiding diseases and remaining healthy. So I think this 21st June Yes, yoga day, yes, 7 my o'clock yoga. in the morning, we'll be having a demo session. For that you can register here in the inbox, or you can just WhatsApp your name and age and email ID on the WhatsApp number of our clinic. 7 to 8 in the morning we will be conducting a demo session. Registrations have already started. Those who have not registered, please feel free to drop a message. I think we'll be having a 100 people window because mostly we'll be doing it over Zoom or something. So try and fill your spot faster. And for the instructions, I think next for the further instructions, you will सैटरडे को मैं हाँ. एक इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि फॉर योगा आपको क्या करना चाहिए, बिफोर योगा आपको कैसे रेडी होना है, कैसे आना है और क्या करना है. उसके लिए मैं आपको सैटरडे को एक मैसेज दूंगी. बी रेडी फॉर दैट. ओके. So see you all on Saturday. Yeah. And hopefully Sunday 7 o'clock World Yoga Day. Sunday जल्दी उठने को बोल रहा हूँ, but Yes. please उठ जाइए. ये आपके लिए है, आपकी हेल्थ के लिए. एक बात, ड्रेस कोड का कुछ बात कर रहे. शायद सैटरडे को किसी को टाइम नहीं मिले तो हो सकता Sure, है please. कि वेयर वाइट. मोदी जी ने जब वर्ल्ड योगा डे अनाउंस किया है तो उन्होंने वाइट को प्रीफर किया है. तो हम भी चाहेंगे कि 7 to 8 का जो तथ्य क्लिनिक के साथ मेरा योगा सेशन है उसमें आप वाइट कपड़े पहने जितने हो सके. तो सैटरडे को शायद आपको टाइम मिले ना मिले, अभी से बता दो. ओके. And so for rest of the preparations, stay tuned on our page, and the details will be shared on Saturday. Till then, stay happy, stay safe, take care. बाय.